అపమానం చేశారు కదా, అక్కడ సభలో అందరూ ఉన్నారు, భీష్మ పితామహ ద్రోణాచార్య అందరూ ఉన్నారు. కానీ వారు ఎవరు ద్రౌపదికి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే అంత అపమానం, అంత అత్యాచారం, అంత అధర్మం పాపం చేసేవాడు దుర్యోధనుడు. వాడిని ఎవరు స్టాప్ చేయలేదు. వాడు ఎవరున్నారు? దుర్యోధనకి తండ్రి ధృతరాష్ట్ర, వాడు కూడా స్టాప్ చేయలేదు. వాడు చేసే అన్య పాపానికి సపోర్ట్ ఇస్తేనే వెళ్ళాడు. అక్కడ పురసభలో ద్రౌపది అప్పుడు అక్కడ కూడా ఏమి చేయలేదు. అందుకే భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు అక్కడ కూడా ఏమో రక్షణ ఇవ్వలేదు వాళ్ళు, అందుకోసం నేను చంపేయాలి. ఎందుకంటే ధర్మం యుద్ధం ఇది, ధర్మం కోసం యుద్ధం చేసేది చాలా ముఖ్యం కదా. ధర్మం యుద్ధం అంటే ధర్మం కోసమే పోరాడేది, ధర్మం కోసం ఇట్టేది క్షత్రియ ధర్మం. ఇది పాండవులు ఎవరు? క్షత్రియులు. సో అందుకే వాడు ధర్మం కోసం యుద్ధం చేయాలి కదా. సో దానికోసం ధర్మం కోసం యుద్ధం చేయండి, అది నీ నేచర్ అంటే భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. కానీ అర్జున్ ఏం చెప్తున్నాడు? నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్తున్నాడు. కాడికి వెళ్ళి భిక్షాటన చేస్తానని చెప్తున్నాడు. కానీ అది ఆపోజిట్గా ఉంది. క్షత్రియకి అది క్షత్రియ నేచర్ కాదు. క్షత్రియ నేచర్ భిక్షాటన చేసి జీవించే కాదు. క్షత్రియ నేచర్ అంటే ధర్మం రక్షణ చేయాలి. వాడి స్వార్థం కోసం వాడు యుద్ధం అవ్వట్లేదు, ధర్మం కోసం యుద్ధం కావాలి. ధర్మాన్ని ఎవరు చేశారో భగవంతుడు చేశారు కదా. లా ఆర్డర్ ఎవరు చేశారో భగవంతుడు చేశారు. సో ఇప్పుడు లాని రక్షించడం కోసం భగవంతుడు వచ్చారు. సో ధర్మం పాలించడానికి వచ్చారు. ఇప్పుడు ధర్మం కోసం మీరు మిగత అయ్యి నీవు ధర్మం కోసం యుద్ధం చేయి అనేంటి మాటలు భగవంతుడు చెప్పారు. దానికోసం ధర్మం యుద్ధం చేయాలి వాడు అర్జునుడు. అలాంటి మాట భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో దానికోసం ధర్మం యుద్ధం అర్జునుడు చేయవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఇందుకే ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు వాడు అదే మాటంలో కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయారు అర్జునుడు. నేను చెప్తున్నాను యుద్ధం చేయనని, భగవంతుడు చెప్తున్నాడు యుద్ధం చేయని. ఇప్పుడు నేను ఎలా వారంజని చంపేయాలి? దానికోసం అర్జునుడు ఫైనల్ ఏం చెప్తాడు? నేను శరణాగతం అయిపోయాను నీకు, శిష్యస్నేహం శాదిమంతం ప్రపన్న కార్పణ దోషం హేదే స్వభావం. వారు చెప్తున్నారు 7th శ్లోకమే హిందీలోనే చెప్పనా. సో వాళ్ళు నేను కొంచెం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు. సో అలాగనే तो अभी ऐसा बोल के भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं. तो अभी शरणागत हो गए अर्जुन ने, है ना. तो अभी शरणागत होने के बाद अभी अर्जुन शरणागत हो गए भगवान को. फिर अर्जुन बोलते हैं अगर मैं शरणागत होने के बाद अर्जुन बोलते हैं अगर मैं सारे राज्य भी जीत जाऊँगा, ये राज्य क्या ब्रह्मा किसका स्वर्ग जो है, स्वर्ग का भी आधिपत्य बन जाऊँगा, स्वर्ग को भी जीत जाऊँ, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं खुश नहीं होता अंदर से. हाँ, सबको मार के मैं खुश नहीं हूँ. तो इसलिए यहाँ पर भगवान समझा रहे, यहाँ पर परपट में प्रपद लिख रहे से भगवान कृष्ण जो है, जो गुरु है, जो गुरु की प्रतिनिधि लिए और गुरु जो मार्गदर्शन कर रहे हैं उसके अनुसार अभी अर्जुन चलना चाहिए. तो अभी इसको स्पष्ट रूप से सब विचार नहीं देख रहा है अर्जुन. वो किस तरह वो अधर्म के कार्य में लुप्त हो गए. जो अधर्म के कार्य में जो भी सपोर्ट करेगा वो भी अधर्म के पक्ष में हो जाएगा ना. तो जो भी पाप करने में, जो भी अनाचार अत्याचार करने में सहायता करेगा किसी और, कोई अभी कर रहा है बुरे कर्म कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, अधर्म के कर्म कर रहा है, जो भी इसको सपोर्ट करेगा वो भी उसमें भागीदार हो जाएगा, है ना. उसी तरह वो लोग कुछ उनको सपोर्ट करें. अभी अधर्म का पक्ष ले लिए तो उनको पहले सोच समझ कर लेना चाहिए. अगर अधर्म के पक्ष पर ले लिए तो उनको तो फिर धर्म अधर्म का युद्ध में, अगर धर्म ये इतना सिंपल है, अगर धर्म युद्ध है एक अधर्म का युद्ध है, एक धर्म का पक्ष है एक अधर्म का पक्ष है. हम किस पक्ष में लेंगे उस पर हमारा निर्धारित होता है, हमारा भविष्य निर्धारित होता है. अगर हम धर्म के पक्ष लेंगे तो भगवान धर्म पर है ना, धर्म बनाने वाले भगवान है, तो धर्म और रक्षिता भगवान है. अगर हम अधर्म के पक्ष लेंगे तो हमारी हार निश्चित है, हमारी मृत्यु निश्चित है ना. काल के रूप में भी भगवान आते, इसलिए क्या बोलते भगवान यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत. धर्म स्थापन के लिए प्रत्युग में मैं आता हूँ, है ना. प्रत्युग में आता हूँ संसार में धर्म को रक्षण करने के लिए, अधर्मियों को पापियों को नाश करने के लिए, साधु संत सज्जनों को रक्षण देने के लिए भगवान बोलते हैं. इसलिए धर्म का पालन करना मनुष्य में बहुत ही प्रामुख्य मुख्य है. इसके धर्म क्या चीज़ है उनको हम सटीक से समझना चाहिए.
हम अपने आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ, मैं जो करूँ यही धर्म है, मैं जो करूँ यही सत्य, यही करेक्ट है, नहीं। हम शास्त्र के अनुसार, भगवान के अनुसार, ब्राह्मणों के अनुसार जीना चाहिए, उनके मार्गदर्शन से हम जीना चाहिए। हम खुद अपने आप डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम अभी उतना परफेक्ट नहीं है। गुरु की शरण सब लोगों को लेना ही चाहिए, है ना। गुरु की शरण सबको लेना ही चाहिए। हम बिना गुरु के हम ABCD भी नहीं सीखते भौतिक ज्ञान में, है ना। अभी हम ABCD भी लिखना है तो गुरु की शरण लेना चाहिए। हम कुछ भी हम पढ़े लिखना है तो हम अपने आप खुद में बुक लेके खुद में पढ़कर में पास नहीं हो सकता। गुरु की शरण लेना है, गुरु से शिक्षण लेना है, भौतिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में क्या बोलना है, शास्त्र के बारे में क्या बोलना चाहिए, तो लेना ही पड़ेगा गुरु का, आध्यात्मिक गुरु का स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसी तरह भगवान कृष्ण का फाइनली अर्जुन ने स्वीकार लिया। तो उसके बाद भगवान क्या बोल रहे इधर, चैतन्य महाप्रभु गुरु के बारे में विवरण दे रहे हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो बता रहे उसकी विवरण श्रील प्रभुपाद महाराज ने इसको विवरण दे रहे हैं। गुरु कौन होता है, तो गुरु वो है जो भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है। भगवान कृष्ण का भक्त होता है, वो सारी शास्त्रों की तरफ को जानता है। भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला, भगवान ने क्या बोला, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं एवेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति। तो अर्जुन, भगवान कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य है, यानी कि भगवान को जाने वाला गुरु होते हैं। एवं एवेति तत्वता, जो तत्वता जानता है वो, यानी कि गुरु है भगवान को तत्वता, यानी कि ज्ञान की दृष्टिकोण से, ज्ञान की चक्षु से, शास्त्र की चक्षु से गुरु को पता है भगवान कौन है, भगवान क्या है चीज़ है ना। ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण भी गुरु है। ब्राह्मण का भी स्थान बहुत ऊंचा है। ब्राह्मण वैष्णव जो स्थान है बहुत ही ऊंचा है, ऊंचा मेरे हाई लेवल है। ब्राह्मण जो वो है जो ब्रह्म जानाति थी, ब्रह्मन यानी कि परब्रह्म, ब्रह्मन यानी कि भगवान को जानने वाला, आध्यात्म तत्व को जानने वाला, शास्त्रों को अच्छे से जानने वाला ब्राह्मण है। और वैष्णव जो है ब्राह्मण से भी अधिक है, यानी कि वैष्णव जो है ब्राह्मण से भी एक अधिक उच्चा है, क्योंकि वो सारे शास्त्रों को भी जानता है। ब्राह्मण को होने के बाद फिर से वो वैष्णव स्थान को जाता है। सिर्फ ब्राह्मण स्थान ही वही सर्वोच्च स्थान है, उससे भी ऊंचा है वैष्णव, यानी कि ब्राह्मण बनने के बाद वैष्णव बनना है। अभी मैं समझ लो एक एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद देते हैं। अभी के LLB किया हो, कोई LLB किया हो, LLB मतलब लायर बनना है, तो LLB करने के बाद वो LLB पास होने के बाद ही लायर बनेगा ना, एग्जाम्पल। तो वो ऑलरेडी लॉ पास किया, उसके बाद ही वो लायर कहलाएगा। उसी तरह अब जो ब्राह्मण का जो क्वालिफिकेशन हमसे आ गया, सत्यादाय, तितिक्षा, कार्मिका, ये सारी जो गुड क्वालिटी जो भी है तो शास्त्र में बताया गया, सारी गुड क्वालिटी हमें आ गया। तो ब्राह्मण की क्वालिटी जो है वो सब बहुत सारी भगवत गीता में भी चर्चा करेंगे आगे। ब्राह्मण का कैसे कैसे गुण होना चाहिए, कैसे वो टॉलरेंस होना चाहिए, कैसे वो ज्ञान में रहना चाहिए, बहुत सारे क्वालिटी है ब्राह्मण की, अभी चर्चा करेंगे आगे जाके। तो वो सारी क्वालिटी ब्राह्मण में होता है, वो सारी क्वालिटी होने के बाद वैष्णव बनता है। ब्राह्मण के बाद वैष्णव होता है, पहले ब्राह्मण बन जाते हैं, उसके बाद वैष्णव, यानी कि भगवान कृष्ण का भक्त वैष्णव जो है बहुत ही उच्च स्थान है उनका, भगवान कृष्ण का भक्त होते हैं। तो वैसे गुरु को हमको स्वीकार करना चाहिए, उनके मार्गदर्शन से। वो मार्गदर्शन करेंगे शास्त्र की जरिए, शास्त्र में जो लिखे उसके ही मार्गदर्शन हमको देंगे, ये सर इसका कीजिए, ऐसा कीजिए। इसी तरह जो वो किसी भी इसमें जन्म ले सकते हैं, वैष्णव मतलब भगवान कृष्ण का भक्त, वो किसी की, यानी या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र जो कहा गया है, ये उनकी जो बर्थ रेट है वो नहीं, उनकी क्वालिफिकेशन, गुण, कर्म, विकास, जो गुण और उनकी जो क्या गुण है क्या कर्म है उसके जरिए है उनको उनका सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ये ब्राह्मण है या वैष्णव है, ये है करके। ऐसा नहीं ये ऐसे नीच कुल में जन्म लिया ये शूद्र है, ऐसा नहीं। उसमें अगर ज्ञान है, उसमें जिज्ञासा है भगवान का, वो भगवान के बारे में जानना चाहता है और भक्ति करना चाहते हैं, तो उच्च स्थान में है, वो ब्राह्मण के स्थान पे आ गया। तो भगवान की जो कर्म, उनकी जो कर्म, गुण, कर्म विभाजन के अनुसार उनको हम मान सकते हैं वो क्या है। अभी वो शूद्र है, वैष्णव है, ब्राह्मण है, कर्म के हिसाब से कर्म और ज्ञान उनको देखना है इस तरह। तो इसीलिए अभी चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि वह विप्र किव न्यासा शूद्र केन नाया से ही कृष्ण तत्ववित्त से ही गुरु हया, यानी कि कौन विप्र, यानी कि विप्र यानी कि ब्राह्मण, वह न्यासा कौन, वैष्णव कौन है, ब्राह्मण कौन है, वो सब कौन है, शूद्र कौन है, वो सब नहीं देखना है। कौन कृष्ण तत्ववित्त यानी कि भगवान कृष्ण के बारे में जानता है, वही
से वही से गुरु हो, या वही गुरु है, वही वैष्णव है, उच्च स्थान में है। वैसे वैसे भगवान भक्तों के हम शरण लेके उनकी शरण लेकर उनकी शरण लेकर हमें उनके पास ज्ञान देना चाहिए। तद विधि पर नहीं पाते ना परिप्रश्न ना, उनकी प्रश्न करना चाहिए, हमारे जीवन की समस्या को हल करना चाहिए। मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझना है। पहले मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य बहुत ही प्रमुख है ना। तपस्या ये सब बहुत ही प्रमुख है। मनुष्य जीवन के उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव बोलते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करना, तपस्या करना। अभी सब लोग तपस्या कर रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं, सब लोग मुश्किल पड़ रहे हैं, शरीर को ये कर रहे हैं, है ना। लेकिन उसके लिए क्यों कर रहे हैं? क्यों उधर भरना, केवल पेट भरने के लिए वो काम कर रहे हैं सब लोग, है ना। पेट भरने के लिए, संसार को देखने के लिए करे, वो भी तपस्या है। लेकिन उससे भी बड़ा तपस्या है, क्या है? भगवान की ज्ञान प्राप्त कर हमारे ज़िंदगी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना, यानी कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना, वो असली तपस्या होता है। भगवान की भक्ति में तपस्या करना, भगवान की नाम जप करना, भगवान की पूजा करना और 4 नियमों की फॉलो करना, पाप कर्म किए बिना इस संसार में जीना, बिना पाप करने बिना ये कर्म की जटिलता के कर्म की चक्र में फंसे बिना संसार में जीना, भक्ति का कर्म विकर्म दोनों किए बिना, यानी कि दोनों भी बंधन का कारण होता है। कर्म और विकर्म, यानी कि कर्म यानी कि शास्त्रोक्त और विकर्म यानी कि शास्त्र की तद्विरुद्ध, यानी कि पाप कर्म। ये दोनों भी, कर्म और विकर्म दोनों भी हमको बंधन में फंसा देता है, यानी कि काल की चक्रव्यूह में, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाता है कर्म ही। इसलिए कर्म की जटिलता से पार होना चाहिए। कर्म नहीं करना है, विकर्म करना है, यानी कि भगवान की भक्ति करेंगे, वो विकर्म है, उससे कोई कर्म बंधन नहीं होता है। नहीं तो कर्म बंधन रहेगा, हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, मैं कैसा कर्म किया हूँ उसे मैं किस योनि में जाऊँगा, पता नहीं हमको। भगवान की नियम प्रकृति हमको पुश करते अगली योनि में जाने के लिए, ना कि मैं 84 लाख अलग अलग तरीके से योनि है, उसमें मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मेरे कर्म के अनुसार है। कर्म हमको बांधता है, कर्म की चक्कर से जन्म मृत्यु चक्कर में फंसे गए। ये काल चक्कर अनंत जन्म से चल रहा है, इससे निकलना ही जटिल है। इसलिए हम इस निकलने के लिए क्या करना है? कर्म नहीं करना है, हमको भक्ति करना है। ये भक्ति सारी कर्मों से, सारी बंधनों से, सारी पापों से, सारी दुविधा से, सारी दुखों से निवारण दे सकता है। केवल भगवान की भक्ति, कृष्ण भक्ति, भगवान की भक्ति सारी विपत्तियों से दूर कर हमको मुक्ति दिला सकता है, भगवान की शरण पहुँचा सकता है। वरना हम इस अज्ञान में हम फंसे हुए हैं, सारे संसार में लोग अज्ञान में फंस कर चल रहे हैं। इसलिए आपको बहुत ही प्रामुख्य क्या है, जो कर्म के चक्कर के निकल कर अज्ञान के सार की जड़ रूप से अज्ञान की वजह से सारी फंसे हुए, सारी ऐसे जटिलता हो गए, हमको खुद नहीं पता चल रहा है कैसे हम फंसे पड़े। अभी यहाँ पर ये देख रहोगे, और रेशमे का कीड़ा रहता है, अंदर रेशमे के कीड़े रहते हैं ना, रेशमे का धागा बनता है, उसमें अंदर का रेशमे कीड़ा बोलते हैं, अंदर में सारे रेशमा इतने सराउंडिंग रेशमा कर लेता है, उसके साथ अंदर ही मर जाता है। लास्ट टाइम में बोला ना, तो रेशमे का कीड़ा वो सब बोलते हैं। तो अंदर सब रेशमा बन देता है, उसमें अंदर वो मर जाता है बोलते हैं, लेकिन वो फंसा है उसमें ही। इसी तरह हम जो भी हम कर्म कार्य कर रहे हैं, पाप करे पुण्य करे, कुछ पता नहीं क्या करे, कर रहे कर्म की जटिलता में फंसते जा रहे, ऐसे ने जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंस गए। इस चक्कर व्यूह से कैसे निकलना है, ये हमको देखना है। एक ही मार्ग है भगवान कृष्ण की भक्ति। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? हाँ, सर्वधर्मं परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, सारे पापों को मोक्षित कर दो, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए भगवान की शरण लेके भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे सारे पाप, सारी बंधन, सब कुछ निकल जाते हैं, सब कुछ निकल जाता है। इसलिए मनुष्य जन्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस जटिलता से, इस अज्ञान की जड़ से हम निकलना है बाहर। इसलिए गुरु क्या बोलते हैं? उपनिषदों का मंत्र क्या बोलते हैं? वो फेमस मंत्र वो है, जो अज्ञान से तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतम गमय। आप जानते होंगे इस श्लोक को। वो तमसोमा यानी कि तम अंधकार से अमृतम गमय, यानी कि तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस से क्या? ज्योतिर्गमय, यानी कि अज्ञान अंधकार से ज्योति की तरफ जाना है। असतोमा सद्गमय, यानी कि असत यानी कि सत्य नहीं है, असत है। असतोमा सद्गमय, असत से सद जो वास्तविकता है, सत्य है, उसकी तरफ जाओ। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो तमस से अंधकार है, उससे से ज्योति की तरफ जाओ। मृत्युमा
अमृतम गमय। जो मृत्यु है ये मृत्यु संसार है, इसको बोल रहे। और अमृतम गमय यानी कि शाश्वतत्व है, शाश्वत जिंदगी है, अमरत्व है, यानी कि वहाँ मृत्यु नहीं, अमर है, मृत्यु या अमर है, उसकी तरफ जाओ। वो उसका मतलब किसको नोटिस करे, एक बोल रहे भौतिक प्रपंच को, असत है भौतिक प्रपंच, सत्य यानी कि भगवान का धाम, शाश्वत धाम, ये असत्य है, ये टेम्पररी है। असत होगा सदगम, यानी कि असत से निकल कर सत्य चीज़ें जो भगवान की धाम है, भगवान है श्री कृष्ण वास्तविकता की। जब भगवद गीता में बोलते न तद भाषयते सूर्य न शशंक न पावक यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम धाम। तो भगवान का शाश्वत धाम है, उधर सूर्य चंद्र और अग्नि नहीं रहता है, शाश्वत धाम है। उधर शाश्वत हम रहेंगे, हम आध्यात्मिक शरीर लेके शाश्वत भगवान की सेवा करते रहेंगे। असत होगा सदगम, ये भौतिक प्रपंच असत है, हम सदगम भगवान की तरफ जाने वास्तविक होते। मृत्यु में अभी संसार में मृत्यु संसार वर्तमानी मृत्यु संसार है, मृत्यु में अमृतम गमय। अमृतम यानी कि वास्तविक शरीर का आध्यात्मिक शरीर के लिए क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बिना हम जिएंगे, वास्तविकता जिंदगी जिएंगे, यानी कि उधर काल का प्रभाव नहीं रहता है। अजर हमारे वास्तविकता के इटरनली शाश्वत काल से शाश्वत रहेंगे भगवान के साथ। असतम सदगमय, मृत्यु में अमृतम गमय। इसके बाद क्या असतोमा सदगमय, मृत्यु में अमृतम गमय। फाइनली क्या आता है, शांति शांति शांति, यानी कि तभी हमको असली जिंदगी में शांति मिलता है। असतोमा सदगमय, मृत्यु में अमृतम गमय। अमृतम यानी कि वास्तविकता जिंदगी, तभी हम फाइनली उसको गोल ऑफ लाइफ को अटेंड कर ले, उसके बाद शांति शांति मिलेगा हमको, वास्तव का शांति मिलेगा। यहाँ पर शांति नहीं है, अशांति है। ऐसा है संसार, यानी कि एक इटर्नल वर्ड, एक टेम्पररी वर्ड। ये भौतिक प्रपंच टेम्पररी है, ये अंधकार है, ये अज्ञान है। यहाँ पर हम वास्तविकता में नहीं जी रहे, ये काल के प्रभाव से है। लेकिन भगवान के धाम है, वो सत्य है, वो वास्तविकता है, वो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होता, वहाँ पर अज्ञान नहीं है, वहाँ पर रोशनी रोशनी। इसका मतलब है इस मंत्र का मतलब। इसलिए बहुत ही प्रामुख्य है, तो हम भगवान की शरण लेके इस सदगमय की जो वास्तविकता की जो लोक है, भगवान की शाश्वत धाम है, उधर जो अज्ञान नहीं है, अंधकार नहीं है, उस तरफ हम चलना है। इस मंत्र का अर्थ होता है, उपनिषद का मंत्र वो होता है। इसलिए वो सब कौन बताएगा हमको, भगवान ही बोलेंगे ना। हम कैसे अज्ञान में फंसा गए हैं, सब कौन बनाएगा, बताएगा, भगवान ही बोलेंगे ना। इसलिए हम भगवान की गुरु की शरण लेना चाहिए, हम वो सब गुरु बताएंगे। इसलिए हमको ये सब बहुत ही प्रामुख्य है। इसलिए अभी चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते, ना ही कोई विप्रा हो, कोई भी हो, कोई भी जन्म क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान कृष्ण के भक्त है। वो किस जन्म में है, क्या उनका क्या जाति है नहीं देखना है, वो भगवान की तत्व जानते हैं, कृष्ण के भक्त है, उनको स्वीकारना चाहिए। उनकी बहिर्दृष्टिकोण से वो शूद्र कुल में भी क्यों ना जन्मा हो, है ना, वो गुरु हो गया, भगवान कृष्ण के भक्त हो गए तो गुरु हो गया, है ना। तो वो ये बहुत ही प्रामुख्य है, गुरु के लिए ये बहुत ही प्रामुख्य। इसलिए प्रभात इसको बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु इसको इस श्लोक को बोल रहे हैं, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ವಿಪ್ರನೇ ಅಥವಾ ಶೂದ್ರನೇ ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಗುರು. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 8.128. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತನಲ್ಲದ ಯಾರೇ ನಿಜವಾದ ಗುರುವಾಗಲು ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ. इसलिए शास्त्र में कहा गया है जब गुरु वो है जब भगवान कृष्ण के भक्त है। वो हम बहिर्दृष्टिकोण से किसी भी जन्म में क्यों जन्म हो, शूद्र हो, ब्राह्मणी होना चाहिए ऐसा नहीं। ब्राह्मण कुल में जन्मे वही गुरु हो सकता है ऐसा नहीं। अगर वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, उसको ज्ञान नहीं है, उसको धर्म नहीं फॉलो कर रहा है, तो ब्राह्मण का जो क्वालिटी है वो डेवलप नहीं किया, तो उसको क्या फ़ायदा। भागवतम तो कहता है कलो शूद्र संभव, कलो शूद्र यानी कि कलयुग में सब लोग शूद्र है। जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात भवेत द्विज वेद पाठत भवेत विप्र। जन्म ना जायते शूद्र मतलब जन्म से सब कुछ शूद्र है। संस्कारात भवेत विप्र, संस्कार से वो विप्र बनता है। संस्कारात भवेत वेद पाठत भवेत जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात भवेत द्विजा, द्विजा यानी कि ट्वाइस बार। संस्कारात भवेत विप्र, जन्म से सब कुछ हम ब्राह्मण कुल में भी क्यों ना जन्मो, हम जन्म जाते शूद्र है, संस्कार से विप्र बनते हैं। संसार भवित द्विजा, द्विजा बनते हैं यानी कि ट्वाइस बार द्विजा। यानी कि द्विजा मतलब है जन्म लेना, दूसरा जन्म। एक जन्म माँ बाप से होता है, दूसरा जन्म गुरु से होता है, दीक्षा से।
संस्कार द्विज वेद पठत भवित विप्र, यानी कि वेद जब पठन करते हैं जब वो विप्र कहलाता है, यानी कि वो निपुण होता है शास्त्र में सारे यज्ञ यागादि करने में, वो परफेक्ट, तब ब्राह्मण परफेक्ट ब्राह्मण कहा जाता है। इस तरह शास्त्र बोलता है। उसी तरह हम ऐसे प्रामाणिक गुरु से हमें शिक्षण लेना चाहिए। इसलिए इस बात को गुरु की, इधर भी गुरु की क्वालिफिकेशन, अभी शरण लिया, अर्जुन ने शरण लिया, इसीलिए प्रभुपाद अभी गुरु के बारे में और चर्चा कर रहे हैं। तो गुरु क्या है, गुरु को क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, गुरु कैसे रहना चाहिए, है ना, वो ये सब हम पॉइंट देखना चाहिए। अभी कलयुग में बहुत सारे गुरु है ना, उसका हम टेस्ट कर सकते हैं कौन गुरु है कौन नहीं है ना। अभी कलयुग में से सब कुछ अभी टेस्ट कैसे करना है, टेस्ट करना है चाहिए ना हमको, इसीलिए हम टेस्ट करके कौन गुरु है कौन गुरु नहीं है, गुरु कैसे बात करते हैं। जो भी गुरु बात करते हैं वो तर्क शास्त्र की बात करता है, अपने मन गणन से अपने मन से कुछ भी नहीं बना देता है। तो शास्त्र में भगवान जो बोले हैं कैसे करना चाहिए वो वही बोलेगा, ऐसा वो प्रामाणिक गुरु है। ना कि मन बुद्धि से कुछ भी बोल दिया, आप ये करो ये हो गया। अभी भगवद गीता में शास्त्र में बहुत सारे भगवान ने बोले गुरु के बारे में, भागवत में बोले, वेदों के बहुत सारे उपनिषदों में गुरु के बारे में बोले, तद विज्ञान सा गुरु एवं अधिगच्छत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा। बहुत सारे शास्त्र में उपनिषदों में भी गुरु के बारे में बताया गया, गुरु कैसे होता है, गुरु के क्वालिफिकेशन क्या होते हैं, कैसे गुरु होता है, उनकी जीवन चरित्र आचार्य कैसे वो आचार्य होता है, वो सब चर्चा है। तो हम शास्त्र पढ़ेंगे। अब इस भौतिक संसार में अभी इस कलयुग में जो बहुत सारे जो गुरु लोग हैं उनका हम आराम से टेस्ट कर सकते हैं, असली गुरु है कि ये फेक गुरु है। गुरु के नाम का सिर्फ नाम का गुरु है, नाम के लिए गुरु का नाम रख लिया है ना, वो हम टेस्ट कर सकते, तब हम इजीली पकड़ सकते हैं। कलयुग में तो सब कुछ चीटिंग है, कलयुग में सब कुछ कौन सा अभी चल रहा है, अभी कलयुग मतलब डिग्रेड हुआ, वहाँ पर कौन गुरु नहीं, हम शास्त्र की तरफ से हम समझ सकते हैं, शास्त्र की चक्षु से हम समझना चाहिए। इसलिए बहुत ही प्रामुख्य वो इम्पॉर्टेंट होता है, सब कुछ हम शास्त्र पढ़कर हम भक्ति करना चाहिए, शास्त्र पढ़कर हमारे जीवन को लक्ष्य को समझना चाहिए, शास्त्र पढ़कर हम कौन गुरु प्रामाणिक गुरु है उनकी शरण लेना चाहिए, नहीं तो हम भटक सकते हैं। वो भी गुरु यहाँ पर कलयुग में बहुत सारे भटकाने वाले बहुत लोग होंगे। प्रभुपाद बोलते किसी की हृदय में अभी प्रामाणिकता होगा, हाँ मैं गुरु को शरण लेना चाहिए, उसको पता नहीं कौन गुरु है, किसके शरण लेना चाहिए, गुरु का क्या क्वालिफिकेशन है, किसी की शरण ले लिया जाता है। हाँ मैं अभी उनको तो अच्छे उद्देश्य है, मैं आप भक्ति सीखना है, गुरु की शरण लेना है, सारी समस्या दूर करना है, लेकिन वो गए किसी गलत गुरु से, वो गलत गुरु से मिल गया, वो गलत गुरु के गलत डायरेक्शन दे देगा उसको पता नहीं है शास्त्र में पढ़ा लिखा है, तो उसको वो कुछ पता नहीं, वो किसी को ऐसा गुरु बन के उसको मार्गदर्शन को इसका मार्ग ही डाइवर्ट कर दिया। इसीलिए हमको बहुत ही मुख्य है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र के पढ़ना, इसके अनुसार चलना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए अभी प्रपद और एक कोट करते हैं, षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्रस्तंत्र विशारदम अवैष्णवो मुको नर्स्यात् वैष्णव सपचो गुरु। और एक बात इस वक्त में कहते हैं प्रपात बोल रहे हैं, वैदिक ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ अभी षट्कर्म निपुण मंत्रस्तंत्र विशारद, इसका मतलब षट्कर्म, षट यानी कि 8 तरीका से, कर्म यानी कि कार्यकलाप, इस 8 कर्म में कार्यकलाप में करने में निपुण जो परफेक्ट हो, वो जो भी है जो परफेक्ट होने वाले जो निपुण हो, विशारद यानी कि बहुत ही एक्सपर्ट हो, वो अवैष्णव हो, लेकिन वो सब में परफेक्ट है, सब कर रहा है, जब भी मंत्र पढ़ रहे वो पढ़ ये करे वो करे, लेकिन वो अवैष्णव, वैष्णव का मतलब भगवान कृष्ण का भक्त, विष्णु का भक्त। अवैष्णव मकत गिरण यानी कि जो विष्णु का भक्त नहीं है, कृष्ण का भक्त नहीं है, वो सब करेगा सभी वो विफल हो जाएगा, वो वास्तविक में नहीं। अभी गुरु का क्वालिफिकेशन, फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है, भगवान कृष्ण का विष्णु का भक्त होना चाहिए। हाँ, विष्णु का भक्त होना चाहिए, शास्त्र में अच्छे से पढ़े लिख कर विष्णु को भक्ति करने के सारे शास्त्रों में क्या है, भगवान ने क्या बोले भगवद गीता में, वेदश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कुर वेद विदे एव चाह, यानी कि सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपोहरम च वेदश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, यानी कि वेद का लक्ष्य जो है शास्त्रों का, वेद शास्त्रों के ज्ञान, ये भी वेद के भाग है सारे शास्त्र। वेद का उद्देश्य क्या है, भगवान को समझना। वेद से सर्वैर अहम एव वेद्यो, जो वेदों की जाने वाला मैं हूँ, वेद का रचिता मैं हूँ, वेद से जानकर जानने वाला भी मैं हूँ, वेद को मैं जानता हूँ और मैं ही वेद को रचिता हूँ, और वेद से जाने वाला व्यक्ति मैं ही हूँ।
वो बोल रहे भगवंत वेदेश्च सर्व अहम एव वेदो वेदांतकुर वेदविद एव चाहम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो सब हृदय में मैं परमात्मा रूप में निवास करता हूँ भगवान बोलते। इसलिए हम वेद पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसके उद्देश्य क्या है, उसके लक्ष्य क्या है, हम स्वर्ग प्राप्त करने के लिए नहीं है। स्वर्ग भी वो भी टेम्पररी है, उधर फॉल डाउन हो जाएगा, हम फिर से मृत्यु लोकम तम विशांति, फिर भी हम यहाँ पर आएंगे। तो वेद का उद्देश्य क्या है, ज्ञान, वेद का मतलब है ज्ञान, ज्ञान का भंडार है। तो ज्ञान का भंडार क्या है, भगवान क्या दिया उसने, हमकी जो संसार है, संसार में कैसे हम पाप रहित जीना है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, भगवान के हमारे जो संबंध ज्ञान क्या है, उसको अभिधेय क्या करना चाहिए, प्रोसेस, उस संबंध को स्थापन कैसे करना है, और उसके करने से भगवान की भक्ति करने से प्रयोजन क्या मिलते हैं हमको, संबंध प्रयोजन अभिधेय, भगवान के हमसे संबंधन क्या है, हमारे अभिधेय क्या करना चाहिए उस संबंध को स्थापन करने के, स्थापन करने के, और उससे क्या आपको प्रयोजन मिलेगा, ये सारे विषयों की चर्चा शास्त्र में दी गई है। अगर हम स्वर्ग भी जाएंगे उधर भी टेम्पररी, यहाँ पर स्वर्ग जैसा मान लो, अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा पुण्य किया, स्वर्ग गया, वो भी टेम्पररी है, जितना पुण्य में संग्रह किया उस तक वहाँ पर स्वर्ग में रहूँगा, उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर आने पड़ेगा इस मृत्यु संसार के चक्र में, गुरु में, ये जन्म मृत्यु चक्र में फंसा पड़ूंगा। जब मुझको ज्ञात नहीं है ये कर के चक्र में निकलना कैसे, ये कर के जंजाल निकलना कैसे, तो हम इसी में पड़े रहेंगे ना, वो ज्ञान कौन देगा, गुरु देंगे ना। तो इसलिए भगवान की भक्ति करेंगे, ये सारे ज्ञान दीप है भाषा से भगवान ने ज्ञान हमको देंगे, हमको अच्छे प्रामाणिक गुरु, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमको अच्छे से गुरु भी देंगे। तो सिर्फ हमको क्या डायरेक्टली भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, करने हमको प्रामाणिक गुरु चाहिए, मैं अच्छे से जीना चाहता हूँ बिना पाप रहित, इसलिए भगवान जी शास्त्र को पढ़ना चाहिए, अच्छे से शास्त्र को समझना चाहिए, उसके बाद हमारी ज़िंदगी में सारे कार्यकलापों को करना चाहिए। इसकी अच्छे नैष्ठिक ब्राह्मण को शरण लेकर शास्त्रों के अनुसार हम जीना चाहिए, तभी हमारे मनुष्य जीवन के लक्ष्य को हम समझ पाएंगे, नहीं तो अब इस चक्रव्यूह निकलना बहुत ही कठिन है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं वो अवैष्णव मकोद गिरणम, यानी कि जो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है उनसे भी कथा भी नहीं सुनना चाहिए। शास्त्र कैसे, अभी अब भगवद्गीता की कथा है, भागवतम की कथा है, भागवत महापुराण है, यानी कि भगवान कृष्ण का दिव्य चरित्र है, भगवान की भक्तों की गुणगान है, जो भगवान की भक्तों की कैसे भगवान ने रक्षा की है। हाँ, ऐसे भगवान की भक्ति करने से क्या महत्व है, भगवान की भक्ति की, सो भक्ति का महत्व क्या है, भगवान कितना महान है, भगवान के भक्तों को कैसे भगवान ने प्रोटेक्शन देते हैं, रक्षण करते हैं, कैसे पद पद में उनको रक्षण देते हैं, उनकी भक्तों की कैसे महान गुणगान है, वो सारी चर्चा आते हैं भागवत महापुराण में। कैसे भक्तों भगवान की शरण लेते हैं, किसी भी दुविधा में कितना भी संकट क्यों ना हो, भगवान कैसे उनको बचाते हैं, कैसे उनको सारी दुख दर्द से पार कराते हैं, कैसे उनके पास रहते हैं, अच्छे दोस्त बनकर, अच्छे माता पिता है भगवान की, ऐसे सारे बहुत सारे भगवान से हम प्यार वार्तालाप कर सकते हैं, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव है ना, सख्य भाव, इस सब बहुत सारे भाव से हम भगवान से रिलेशन स्थापन कर सकते हैं। अभी हनुमान जी जो सख्य भाव है ना, अर्जुन जो है वो फ्रेंड का वो सख्य भाव है अर्जुन से, तो जो हनुमान जी का जो हनुमान जी के दास्य भाव है, यानी कि दास जैसे सेवा करना हनुमान जी का भाव है। अर्जुन का क्या भाव है, सत्य, यानी कि फ्रेंडशिप का भाव है। माता पिता का वात्सल्य भाव है, उनकी यशोदा मदर यशोदा नंद महाराज का भगवान कृष्ण का वात्सल्य भाव, ये सब भक्तगण भगवान से ऐसा प्रेम से आदान प्रदान करते हैं, भगवान इसी तरह आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए बहुत ही प्रामुख है भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करके भगवान के नाम, कलयुग में भगवान के नाम ही एक आधार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असली में हम भगवान को जानना चाहेंगे, असली में हम भगवान को भक्ति करना है तो ज्ञान से लेना है। अभी कुछ लोग अभी देखेंगे, अभी आए दर्शन लिए भगवान के चले गए, वो भी भक्ति वो, लेकिन वो कैसा भक्त में है, प्रारब्ध अंत के भक्त में। हमें ज़्यादा भगवान के बारे में जानना है, असली में हम भगवान की भक्ति करना है तो भगवान कैसे बताए भक्ति कैसे करना चाहिए, शास्त्र में बताए है ना, इसमें सब कुछ बताए भगवान ने, क्या कर्म क्या है, कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म करके इस बंधन पे मुक्त होंगे, कर्म चक्र से कैसे मुक्त होना है, कर्म कर्म विकर्म क्या है, कौन सा कर्म बंधन को हमको ये करता है, कौन सा कर्म हमको विकर्म यानी बंधन से विमुक्त करता है, कौन सा कर्म हमको पापों से विमुक्त करता है, और ज्ञान क्या है, और भक्ति क्या चीज़ है, ज्ञान किसको बोलते हैं, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान है ना, भौतिक प्रपंच, आध्यात्मिक प्रपंच, आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान,
ज्ञान है। स्कूल कॉलेज में कोई नहीं बताएगा आत्म का ज्ञान, है ना। भगवान के बारे में कौन बताएगा, स्कूल कॉलेज में कोई नहीं बताएगा। मनुष्य जन्म का यही महत्वपूर्ण उद्देश्य है ना। भगवान इसलिए वेदांत सूत्र कहता है आता तो ब्रह्म जिज्ञासा। हम मनुष्य जन्म में आ गए तो ब्रह्मन की जिज्ञासा करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। इस दुखमय परिस्थिति से अज्ञान से दूर होना है, ज्ञान देना है। तो ज्ञान कौन देगा, भगवान ही देंगे ना। तो भगवान दिए हुए ज्ञान ही पक्का होता है। जब हम स्कूल कॉलेज में लेते हैं वो तो बुद्धवार भरण विद्या, हमारे आत्म उद्धार विद्या नहीं है। हमारे जीवन की समस्या को हम इस जन्म मृत्यु चक्रव्याधि से पार करने वाला विद्या नहीं है। वो सिर्फ उदर भरने विद्या, पेट भरने का विद्या है। वो तो हम श्रीमद् भागवत महापुराण में ऋषभदेव बोलते हैं, तो भगवान कृष्ण का ही अवतार है ऋषभदेव, भरत महाराज के पिताजी है। तो भगवान ऋषभदेव है, उनका एक भागवत महापुराण में बहुत सारे चर्चा आते हैं। वो बोलते हैं कि संसार में जब हम काम कर रहे हैं, इस संसार में सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ उदर भरण विद्या के लिए अभी काम कर रहे हैं ना, कि वो पेट भरण के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आत्म उद्धार के लिए क्या कर रहे हैं, आत्म कल्याण कर कार्य क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मनुष्य जन्म में। इसलिए आता तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि हम मनुष्य जन्म प्राप्त हुए भगवान की कृपा से। अब हम मनुष्य जन्म को लक्ष्य को समझना है, इस अज्ञान अंधकार से निकलना है, इस सारी समस्या से निकलना है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य है इस जन्म मृत्यु जराव्याधि चक्रव्यूह से निकलना है। इस जन्म मृत्यु चक्रव्याधि कैसे निकलेंगे, इसका मेन उद्देश्य है कर्म में फंसे हुए, कर्म में जो भी हम कर्म किए उसी कर्म को हम रिफ्लेक्शन आएगा ही, है ना। तो इस कर्म की जटिलता को हम निवारण करना है। इस जटिलता को कारण क्या है, अज्ञान है। अज्ञान की वजह से बिना सोचे समझे कर्म करे, पाप कर्म पुण्य कर्म सब में फंसे रहे। अज्ञान की वजह से तो सारी जटिल का अज्ञान ही कारण है। अज्ञान निवारण हो गया, भगवान की भक्ति में आ गए, तो अब इस सारी दुविधा से पार हो जाएंगे। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, इसलिए हम इस पद्म पुराण का श्लोक में भगवान ने बोले तो गुरु की हरे कृष्ण बनिए हरे कृष्ण। अंतिम इसलिए भगवान ने बोले नेक्स्ट प्रामाणिक गुरु से लेकर वो भी भक्तों से हमें शास्त्र सुनना चाहिए। अभी किसी ने अभी भागवत कथा कर रहे हैं, भगवद गीता में बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो भक्त नहीं है, समझ लो भक्त नहीं है। उससे सुनकर हमको क्या फ़ायदा, कुछ नहीं फ़ायदा होगा। अवैष्णव मकोद गिर, यानी कि जो वैष्णव ने भगवान के भक्त ने उनसे वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, कुछ लेने के लिए कर रहे हैं, तो वास्तव में हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा उनसे, उससे, है ना। इसीलिए हम क्या इसलिए कर रहे हैं, जो भक्त लोग हैं, जो भगवान को जानते हैं, उनसे हम भगवत कथा सुनना चाहिए, उनसे हम भगवत गीता भागवतम को सुनना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, लीला सुनना चाहिए। तो वैष्णव नहीं उनकी से उनके मुख से हम कुछ नहीं सुनना चाहिए। इस बात को ये श्लोक, ये पद्म पुराण का श्लोक बोल रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं, ವೈದಿಕ ವಿಧಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಜ್ಞರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿದ್ವಾಂಸನು ವೈಷ್ಣವನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಗುರುವಾಗಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಳಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ವೈಷ್ಣವನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಗುರುವಾಗಬಹುದು. ಪದ್ಮಪುರಾಣ. ಹುಟ್ಟು ಮುಪ್ಪು ರೋಗ ಸಾವು ಐಹಿಕ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು